بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ ای او بی آئی کی بائیو میٹرک لائیو ویریفیکیشن کے حوالے سے جو گزشتہ روز میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس ویڈیو کے نیچے 36 کے لگ بھگ کومنٹس آئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے فون آئے ہیں جن میں کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں۔ آج کی ویڈیو بائیو میٹرک تصدیق کے حوالے سے ہے اور جو بہت اہم سوال ہیں وہ میں نے سارے اس میں شامل کر دیے ہیں۔ آج کی ویڈیو اسی لیے بہت اہم ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بائیو میٹرک کی اب ضرورت نہیں ہے اور بہت سارے لوگوں نے اپنی بائیو میٹرک کروا لی ہے۔ ضرورت کیوں ہے اور کیوں نہیں ہے، اس کا جواب بھی میں آپ کو دوں گا۔ بینک الفلاح والے کیا کہہ رہے ہیں اس کا بھی میں آپ کو جواب دوں گا، اور قانون کیا کہتا ہے، اسٹیٹ بینک کی کیا پالیسی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تمام تر صورتحال جو کنفیوژن ہے، میں آج اس کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ سے استدعا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب، اور آج کا موضوع بائیو میٹرک لائیو ویریفیکیشن ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ پاک آپ کو خوش اور خرم رکھے، سلامت رکھے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ای او بی آئی کی لائیو ویریفیکیشن ہر 6 ماہ بعد ہوتی تھی، ہوتی چلی آ رہی ہے، اب بھی ہو رہی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نئی بات اس میں یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے گزشتہ کچھ دن پہلے یا کچھ عرصہ پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں انہوں نے بائیو میٹرک لائیو ویریفیکیشن کے حوالے سے یہ کہا کہ اب یہ 1 مارچ سے لے کر 31 مارچ تک، اور پھر 6 مہینے بعد یعنی 1 سپٹمبر سے لے کر 30 سپٹمبر تک ہوا کرے گی۔ اور انہوں نے اس حوالے سے جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور بینک کو انہوں نے نوٹیفیکیشن دے دیا۔ اب جو لوگ بائیو میٹرک نہیں کروا سکتے، چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، گھر میں ہیں، کوئی فالج کا مریض ہے، کوئی ہارٹ اٹیک کا مریض ہے، کوئی اس طرح کی اگر کوئی صورتحال ہے، چلنے پھرنے سے اگر کوئی پینشنر جو ہے وہ قاصر ہے، تو اس کے لیے انہوں نے پھر دوسرا فارمولہ دیا کہ جناب آپ اپنی ویریفیکیشن کروائیں گے تھرو فارم کے۔ اچھا، اب فارم کے ذریعے جو ویریفیکیشن ہونی ہے اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، یہاں پر بھی مختصراً بتا دیتا ہوں کہ فارم فل کریں گے، اس کے بعد گزٹڈ آفیسر سے اس کو ویریفائی کروائیں گے۔ ویریفائی کروانے کے بعد اگر کوئی دستاویزات ساتھ لگانی ہے، وہ فارم کے اندر مینشن ہے، وہ جا کے آپ نے بینک میں جمع کروا دینی ہے۔ بینک نے آپ کو لائف سرٹیفکیٹ کا ایک فارم جو ہے وہ انہوں نے دے دینا ہے۔ تو یوں آپ کو جو ہے ایک لائیو ویریفیکیشن ثبوت جو ہے وہ پروف بھی آپ دے دیں گے، اور وہ واپس آپ کو اس کی جو رسید ہے یا جو بھی ڈاکٹری کی رسید جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بائیو میٹرک کے بعد بھی فارم دینا لازمی ہے؟ فارم کہاں بھجوانا ہے، بینک میں یا ای او بی آئی کے آفس میں؟ یہ سوال کیا ہے رخسانہ فیض صاحبہ نے میری گزشتہ ویڈیو پر۔ تو جنہوں نے بائیو میٹرک کروا لی ہے ان کو فارم دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور فارم اگر دینے کی ضرورت ہے، کوئی مریض ہے، پیشنٹ ہے ایسا جو بینک تک نہیں جا سکتا، تو پھر آپ نے وہ فارم بینک میں جا کے جمع کروانا ہے، نہ کہ ای او بی آئی کے آفس میں جمع کروانا ہے۔ اب دوسرا سوال ہے شفیق خان صاحب کا۔ میں نے مارچ کے فرسٹ ویک میں الفلاح بینک سے بائیو میٹرک کروا لی تھی، سو اب سپٹمبر میں انشاءاللہ ہوگی۔ جی بالکل شفیق خان صاحب، آپ نے بالکل اچھا کیا، قانون کے مطابق آپ نے کام کر دیا۔ اب یہ سید اقبال حسین بخاری صاحب ہیں، میسج میں ایزی پیسہ ٹیلی نار کا بھی رکھا ہوا ہے، ان سے بھی لائیو ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں۔ تو بھائی اب سید اقبال حسین بخاری صاحب اب جو ہے وہ ٹیلی نار اور اس کے حوالے سے کوئی پالیسی جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اب آپ کو بینک میں ہی جا کے یہ کام کروانا ہوگا اور بینک کے تھرو ہی آپ کی ویریفیکیشن ہو سکے گی۔ اب یہ ہانیہ علیم ہے، یہ کہتی ہیں کہ جنوری میں کروائی تھی اب کروانا ہوگی۔ تو میری بہن یہ آپ سن لیں کہ آپ نے جنوری میں کروائی تھی، تو اب جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی انسٹرکشنز ہیں یا پھر ای او بی آئی کا لاسٹ نوٹس
2 दिन 3 दिन पहले जो इशू हुआ है उस जिसके हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी, तो आप जो है लाइव वेरिफिकेशन अगर मार्च में करवा सकती हैं तो करवा लें, अगर ना करवाना चाहें तो हो सकता है आपको जो है आइंदा करवानी पड़े। बहरहाल कानून यही है, आप करवाएं ना करवाएं ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ये सैयद हारिस हैं, मुझे भी फॉर्म भेज दीजिएगा, आप व्हाट्सएप जो है वो कर देंगे तो हम आपको जो है वो उस पर भेज देंगे, व्हाट्सएप पे ही भेज देंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। जी ये हसीब खान साहब ने दुआ दी है, अल्लाह पाक आपको भी हसीब खान साहब खुश रखे, हमेशा मुस्कुराते रहें। ये मुश्ताक अली हैं, मेरा कार्ड इशू जनवरी 2021 में हुआ था, मुझे भी वेरिफिकेशन करानी होगी। जी बिल्कुल, आपको वेरिफिकेशन करवानी है, करवा लीजिएगा, ज़रूर करवाइएगा। सलीम रज़ा साहब हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। इन्होंने कहा है कि मैंने वेरिफिकेशन मार्च के फर्स्ट वीक में करवा ली है और सर थैंक्स। तो सलीम रज़ा साहब आपने बहुत अच्छा किया, आपने ये वेरिफिकेशन करवा ली है। मैंने नवंबर में EOBI बायोमेट्रिक बैंक अल-फलाह से करवाई थी, अब फिर जाता हूँ बायोमेट्रिक के लिए, कोविड-19 की वजह से बैंक के जो कॉरिडोर लाइन में इंतज़ार करना होगा, गवर्नमेंट SOPs फॉलो। तो गवर्नमेंट SOPs फॉलो नासिर ख्वाजा साहब तो ये तो करनी पड़ती हैं, लेकिन आपको बायोमेट्रिक जो है वो करवाना ज़रूरी है, आप एक दफ़ा मार्च में ज़रूर करवा लीजिए। तो इसके साथ हैं जलील अख्तर साहब, थैंक्स डियर, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे सर। आपने मैसेज किया। ये नदीम सदीकी साहब हैं, काशिफ भाई क्यों झूठ बोलते हो, बैंक अल-फलाह की तरफ से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का कोई मैसेज नहीं आया, पैसा अर्न करने के लिए लोगों को मिसगाइड करना जो है ये गुनाह है। नदीम सदीकी साहब बिल्कुल आपने बजा फरमाया है, जो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं उनके तमाम तर सबूत मौजूद हैं, मुझे आप व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको उन पे भेज देता हूँ। मुझे झूठ बोलने की कतन आदत नहीं है। और बाकी रही, मैं लॉ का काम करता हूँ, अल्लाह का फजल है, मेरी वहाँ से भी इनकम बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पर कई दिन वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो वो इसलिए नहीं बनाता हूँ कि मेरी कोई इनकम का इन्हिसार यूट्यूब पर नहीं है, ये तो फ़कत एक इबादत की गरज से जो है ये काम करता हूँ। मैं आपसे तवक्को करूँगा कि आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर भेजेंगे तो मैं आपको जो है उसकी तमाम तर जो डिटेल्स मौजूद हैं, अगर आप अखबारात पढ़ते होते तो शायद आपको वहाँ से भी ये मटेरियल मिल जाना था। लाल जान बलोच साहब हैं, इन्होंने कहा कि इफ़ ए पेंशनर आर रेडी बायोमेट्रिक डन देन ही वुड डू दिस बायोमेट्रिक इन मार्च। जी बिल्कुल, ज़रूर करेगा जी। मोहम्मद अयूब साहब हैं, बाबा जी ये मर्दान से हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। मैंने 2-3 माह पहले बैंक अल-फलाह से किया था और उन्होंने कहा कि 6 माह के लिए है, क्या अब दोबारा जाऊं? 6 माह तो नहीं हुए। बाबा जी मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा कि आप चले जाएं, चूँकि पॉलिसी है, आप पॉलिसी से जो है वो हमें इनहराफ नहीं करना चाहिए। ये जमील अख्तर साहब हैं, बायोमेट्रिक के लिए सबको मोबाइल पर मैसेज आ जाता है। जी हाँ, कभी कभी आ जाता है और कभी कभी नहीं भी आता जमील अहमद साहब। और ये मोहम्मद ताहिर साहब हैं, इन्होंने कहा है मैं आज ही बैंक अल-फलाह गया, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी वेरिफिकेशन मई तक क्लियर है, आप जून में आना, जबकि आप मार्च बता रहे हैं, बराए मेहरबानी मेरी तस्दीक फरमा दें। ये मोहम्मद ताहिर साहब हैं। मोहम्मद ताहिर साहब जो बैंक की इंस्ट्रक्शंस हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की और EOBI का लास्ट नोटिस आया है, मैं उसके मुताबिक बात करूँगा। बैंक अल-फलाह का नुमाइंदा क्या कहता है क्या नहीं कहता वो आप जो है वो देख लीजिए, उनसे दोबारा पता कर लीजिए। तो बहरहाल जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है और नोटिफिकेशन है मैं उसके मुताबिक आपको गाइड कर रहा हूँ। ये इम्तियाज़ अली साहब हैं, काशिफ भाई आज लाइव वेरिफिकेशन के लिए बैंक अल-फलाह जाना हुआ पर बैंक ये बोलकर वापस भेज दिया कि आप 3 या 4 अप्रैल को आएँ। तो इम्तियाज़ अली भाई आप जो है 3-4 अप्रैल को चले जाइएगा, हो सकता है कि आपकी दोबारा वेरिफिकेशन हो जाए, अगर रुक भी जाएगी तो आप जो है वेरिफिकेशन फिर मार्च के बाद करवा लीजिएगा।
जनाब मेरी वेरिफिकेशन 9/9/2020 तक थी। कम से कम 6-7 दफ़ा बैंक अल-फलाह के मुख्तलिफ ब्रांचों में जा चुका हूँ और इस मार्च में भी गया हूँ। बैंक वाले यही कहते हैं कि अभी वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम अभी बाकी है, कोई मैसेज भी नहीं आया वेरिफिकेशन करवाओ। पेंशन लेने के बाद मैसेज आता है कि आपकी ट्रांजैक्शन हो गई है, इतना बैलेंस है। पैसा लेने के बाद दूसरा मैसेज ये होता है कि मोअज़्ज़ज़ पेंशनर फलां माह की पेंशन के आपके EOBI कार्ड में जमा हो गई है। पता नहीं क्या चक्कर है, सख्त परेशानी है। मोहम्मद जहांगीर साहब, आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप गए हैं, जब बैंक वाले आपको बुलाएं तो आप जब बैंक वाले आपको बुलाएं तो फिर आप चले जाएं। बहरहाल कानून वही है, मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, जैसे कानून है मैंने तो कानून की बात ही करनी है। नाज़ी मलिक हैं, वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन तो नहीं आया। मेरी बहन बहुत अरसे का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरी एक वीडियो में उसका नंबर चीज़ें दी गई हैं, आप वो वीडियो देख लीजिए या फिर व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सअप में भेज दूँगा। अब ये फ़रहत बानो है, मैं गई थी बैंक पर, उन्होंने कहा है कि अभी ज़रूरत नहीं है। जी ठीक है, अगर नहीं है ज़रूरत तो फिर आप अभी ना जाएं और जब वो आपको बुला लें तो फिर आप चले जाएं। अगर मार्च के बाद आपकी पेंशन स्टॉप हो जाती है तो फिर बाद में वेरिफिकेशन करवा के बहाल करवा लीजिएगा। मोहम्मद यूसुफ है, न्यू कार्ड एक्टिव हो गया है। जुल्फ़ी कब तक बेवकूफ़ बुज़ुर्गों को बनाएगा? बिल्कुल, ये पेंशन के इजाफे के हवाले से शायद बता रहे हैं, तो पेंशन में इजाफा इंशाल्लाह जो है वो बहुत जल्द मुतवक्की है। काशिफ साहब, दिसंबर में बायोमेट्रिक कराई थी, आज बैंक गया तो उन्होंने बोला कि आपकी वेरिफिकेशन हुई है, आप 7 मई को आना। अब वही बात है, ये सारे दोस्त वही कह रहे हैं जो बात बैंक वाले बता रहे हैं। बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि 31 मार्च से पहले पहले करवा लें। अगर वगरना बैंक जैसे आपको कहता है आप वही करवाएं। मार्च में अगर आपकी पेंशन स्टॉप हो भी जाए तो फिर आप लाइव वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा, फिर आपकी पेंशन दोबारा चालू हो जाएगी। ये नवीद मुनीर है, काशिफ साहब दिसंबर में बायोमेट्रिक कराई थी, आज बैंक गया तो वो भी वही साथ वाली बात कह रहे हैं। ये अफजल अहमद साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। और एक रिक्वेस्ट ये है कि फरवरी के लास्ट वीक में लाहौर हाई कोर्ट ने EOBI पेंशनर के लिए कुछ एज लिमिट का एक ऑर्डर किया था कि रजिस्ट्रेशन की बेहद किसी की पेंशन का लीगल होगा। प्लीज़ उस आर्डर की कापी व्हाट्सअप कर दें तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। इसकी कोई डेट वगैरह मुझे बता दें कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला कब किया है। अफजल अहमद साहब, तो मैं आपको जो है वो भेज दूंगा। तो ये थे आपके कमेंट्स, 36 के लगभग कमेंट्स जो है आज की वीडियो में आ चुके हैं। तो इसमें 2 बातें बड़ी अहम हैं। एक तो बायोमेट्रिक के हवाले से जो बात हुई है कि वो कब होनी है, तो भाई उसकी जो लास्ट डेट है फिर बता रहा हूँ वो 31 मार्च ही है। अब बैंक वाले अगर आपकी वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल जैसे बैंक आपको कहता है आप रुक जाएं। अगर पेंशन आपकी स्टॉप हो जाए तो फिर आप दोबारा लाइव वेरिफिकेशन करवा के अपनी पेंशन बहाल करवा लीजिएगा। और अभी मुझे एक दोस्त की कॉल आई थी तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि यार आपने लोगों को कंफ्यूज कर दिया। मैंने कहा भाई मैं क्यों कंफ्यूज करूंगा, मैंने तो आपको लॉ और कानून की बात बतानी है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आप जैसे आपको अच्छा लगे बैंक को आप फॉलो करें ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। अगर आप चले जाएं उनको कहें कि यार हमारी कर दें तो वो कर देंगे। उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।